Hello and namaskar. Welcome to Exploring the Unexplored. I'm Umashankar Yadav. My guest of the day is Sri Harsh Brahmbhatt. Welcome to the show, sir. Thank you so much. I would like to give a small introduction of yours, though it is a very big, but I have just summarized it for the for the benefit of our viewers. Sri Harsh Brahmbhatt is a Gujarati, Hindi, Urdu poet and writer. He has been writing since more than 3 decades, and around 15 books have been published so far. A Master of Science in Physics from Gujarat University of 1977 batch, he has been a very efficient government officer of Gujarat and retired in 2014 as Additional Secretary to the then Chief Minister of Gujarat and current Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji. He has been Additional Secretary before that. Sri Harsh Brahmbhatt has received many literary awards from prestigious institutions for his outstanding contribution to the field of literature. His monthly poetry event, Sada Sarvada Kavita, which is a very popular platform for all Gujarati writers, readers, speakers, and viewers, watchers together, has completed 79 editions just last week. Recently, he is working as a full-time advisor to Reliance Industries Limited in Ahmedabad. He is editor also. He has edited many books along with some co-editors. His ghazals have been sung by very famous singers like Sonu Nigam. Then we have Rashid Khan, Ustad Amjad Khan, Muhammad Hussain, Hariharan, Kavita Krishnamurti, Arijit Singh, and many more. His books are there in Gujarati as well as in Urdu. There are 4 books in Urdu as well, and many edited. Sir, to start with you, you have been since early days Master of Science in 1977. India just got independence around say 27 years back. India was a very nascent country, very nascent independent country at that time. And आप हमेशा तब से you have been always in a position of power since your early days. So how is the life of power elite? I can say you as a power elite in our society, because wherever you are, you can get the job done for the people, and you have been very kind for the people in helping wherever and whenever someone has approached you. आप से रिक्वेस्ट करूँगा आप हिंदी में जवाब दीजिए सर, मैं भी हिंदी में ही पूछूंगा. No problem. नहीं देखिए, first of all I will say that whatever position I got in government after passing this Public Service Commission examination, it is all grace of God. Of course, one has to work hard for everything, but ultimately that important factor of luck is also very crucial. तो मेरी लाइफ में तो मैं तो बहुत ही एक छोटे से रेलवे कॉलोनी में के एक मकान में हम लोग रहते थे. मेरे पिताजी रेलवे में क्लर्क थे, तो वी हैड एब्सोल्युटली नथिंग सो टू से. और उसी पोजीशन से ये एमएससी तक पढ़ के अगेन विद द ग्रेस ऑफ गॉड माय एकेडमिक करियर वाज आल्सो वेरी गुड. I always stood first or second in the university. In MSc I was first in the university. And immediately thereafter I had joined PRL. Okay. For a while. Physics. Right. I was in physics. Yes. I was selected by PRL and I worked with Dr. John, who was head of the plasma unit there. And I was very happy there. But during that particular period, as destiny would have it, there was a strike in PRL and against the director, and everything was in doldrums. We were not sure whether this institute will continue or it will get merged with NPL Delhi. So my father advised me कि भाई you give some examinations जो Public Service Commission वगैरह की हैं. Government job is always better. Yes. So I had never thought that I would go to any because before that I had not seen a single government office. I appeared and in very first examination I cleared it. And physics was your love? I mean, you loved today, science? even today. Achha. It is my love. I will tell you how it is. And then I cleared that examination. I joined government, and as luck would have it, since I was in one of the first 5 candidates in the select list, I got GAD. GAD is always headed by Chief Minister, irrespective of government. तो वहाँ पर मुझे GAD में मिल गया काम. तो GAD is the nerve center of the whole business, government business और administration. तो वो काम मुझे करना मिला है. तो उसमें से धीरे धीरे 5 के 6 महीने या 1 साल में ही
I got this very important work of managing all India services, IAS, IPS, IFS. Right. And along with that, there were so many important subjects: appointments of High Court judges, appointment of Lokayukta, appointment of members and chairman of public service, all those things. Now, coming back to your question, see, elite power or power, whatever way you may put it, thing is that power should not enter your mind. Right. That is the first and foremost requirement to be successful, to be consistent, and to be in good books of all the political regimes, irrespective of party. Right. Right from 90, when I joined government service, Bahubhai Jashbhai Patel of Janata Party was the chief minister. Soon after, then this Congress government came. Madhavsinh Solanki was the chief minister. Since then, from all those years, till I retired in 2014, all these chief ministers were there. Madhavsinh Solanki, Amar C. Chaudhary, Keshubhai Patel, Narendra Bhai, all those people were there. But nobody even thought that since I was working with the previous regime, I would be loyal to them. And therefore he should be transferred. That kind of thought never occurred to them. Because everybody was looking at my work, my sincerity, and most importantly, Umaji, that is my personal belief. If you are honest, then that honesty always comes to your help every time. And you should be forthright, objective, transparent, and you should tell the government true things, right things. You cannot go on appeasing chief ministers or political. And you were not there to please anybody. I was not there. So in fact, I had any number of fights and quarrels with all the chief ministers, including Narendra Bhai, Right. on any number of issues. I would say this cannot be done. Most of the time now people do to please take And actions. they always appreciated this thing, and you'll be surprised to know that no CM, barring a couple of exceptions, nobody ever overruled me on file. They always agreed with me. In fact, you were given extension by Extension Narendra also Bhai, by 2 years. And so these are the things. Now, there are two important factors to be successful in government service and to be able to do the works of needy people. One, that you should be very sensitive, you should be sincere, hardworking, and you should not have any ulterior motive. Right. Secondly, you should understand the problem of the other person. See, you have to go to the other side of the table Right. and look at the issue. Then only you will be able to find the solution. Most of the times it so happened that the persons who came to me, they had different kind of work, which was not at all related to my sphere of work. Right. Something may be relating to revenue department, something may be relating to panchayat, finance, urban development, agriculture, any number of. But because of my working approach, and of course because of I was dealing with all India services cadres, I could talk to anybody, any collector, municipal commissioner, DDO, secretary, these, that, and of course ministers also. And it so happened that whoever came to me never went empty-handed. That work was always done. Right. I can't find a single instance that thing was not done. So it is all God's grace, and since power didn't enter my mind, I continued to remain rooted to my railway colony days. And even today, in my house also, I tell them that unless we go back to that position, we are happy. तो व्हाट अबाउट लाइक जनरल पीपल फील सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कि हमारा काम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है. आपको कभी जैसे जो पावर स्ट्रक्चर में इस तरह से आपकी जैसी पोजीशन में रहते उन लोगों को सोसाइटी में कोई उस तरह की दूसरी प्रॉब्लम नहीं आती होंगी ना, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो होती हैं जनरली. दैट वाज आई जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके जो जनरल लोगों की समस्याएं होती हैं कहीं एएमसी में, कहीं इधर, कहीं उधर, कहीं, तो वो सब तो शायद नहीं होती होंगी. नहीं आती है ना, ऐसे ही लोग आते थे. Okay. Those kind of people came. For example, I will tell you, suppose I remember one instance, one farmer was coming all the way from Kutch, and once just like that in the evening he came to my office and told me कि सर मैं यहाँ 2 साल से आ रहा हूँ और मेरा एक मैटर यहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आया हुआ है, कलेक्टर ने उस पर क्लैरिफिकेशन मांगा हुआ है और एनए परमिशन के लिए, और उसका ये लोग कुछ दे ही नहीं रहे, लिख भी नहीं रहे, कुछ हो ही नहीं रहा है, और मेरा इतना प्रॉब्लम, ही नरेटेड हिज प्रॉब्लम्स. तो मैंने बोला नहीं ये तो बहुत गलत बात है. Then I talked to the revenue secretary. I told him that I am sending him. You call the deputy secretary concerned. If you want, I can come personally also. There is no problem. But that person was also good. तो उन्होंने सब निकाला, बुलाया उन लोगों को और डांटा कि इसको क्यों रख के छोड़ा है आपने. And within 3 days that work was done. Thereafter. तो ऐसे लोग भी आते हैं.
सही बात है सर। एंड इनफैक्ट आपने जैसा बताया कि आपने कभी किसी को निराश नहीं किया, सबको कभी ना कभी सोल्यूशन हर व्यक्ति को मिल ही गया है। अगर हम आपकी क्रिएटिविटी की तरफ आते हैं कि आपकी जो पोइट्री है वो हमेशा मैंने बहुत सारी पढ़ी, आपके फेसबुक को हम फॉलो करते हैं और उसमें जो आप डालते ही रहते हैं जनरली वेरी एक्टिव, और आपकी कविताएं आती रहती हैं हिंदी में भी और हिंदी उर्दू एंड गुजराती में भी। तो उसमें हमें जो बहुत बार देखने को मिला उसमें फिलॉसफी ऑफ लाइफ, स्टेट ऑफ सोसाइटी, डेलिकेसी, जो एक नज़ाकत होती है कविताओं की, गज़ल की, वो भी हमें मिलती है। हमने बहुत सारे गज़लकारों को पढ़े हैं, गज़ल तो रहेंगी स्ट्रक्चर वाइज, ग्रामर वाइज दे विल बी ऑल राइट, बट वो एक जो गज़ल की एक नज़ाकत है, एक नफासत है, एक डेलिकेसी है, फाइनेंस है, जो वो नहीं रहती है। आपकी गज़ल में हमें हर चीज़ मिली है, सटायर हैं एंड बहुत बार हमने देखा है कि आपने जो हम भक्ति काल के पर्टिकुलरली कबीरदास जी वगैरह हैं, उनकी जो डायडेक्टिक स्टाइल है लिखने की, वो भी देखने को मिला है। मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ जो मुझे बहुत पसंद आई आपकी, एक जिसको आपने लिखा, ये है अगर हम इसकी बात करें जिसमें आप ज़िंदगी की बात करते हैं, तो आपकी एक ताज़ा गज़ल से हमने लिया, दिल से एक ज़ख्म ताज़ा निकला है, एक शोला बुझा सा निकला है। मतलब ये एक जीवन बताता है, जीवन की फिलॉसफी बताती है। और अगर हम डेलिकेसी की बात करें जिसमें गज़ल के हमें दिखता है, खूबसूरती दिखती है, ईद का चांद तुमसे शर्मा कर छुप के बादल में आधा निकला है। यहाँ पे आप देखिए एक खूबसूरती का बयान होता है। अब एक सटायर जैसा मुझे जो मिला मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग हैरान हैं इस खबर से के शख्स वो सीधा साधा निकला है। हाँ, आज लोग ताजुब हो जाते हैं कि सीधे साधे इंसान से लोग ताजुब करते हैं। ये किस तरह से कही गई है बात, आप देखिए कितना खूबसूरती से कही गई बात है। अब नज़ाकत या सटायर दोनों ही आप इसमें ढूंढ सकते हैं। क्या क्या जमाना रहा नज़ाकत ना, नत्र लागे छे दाव कसरत ना। हाँ, क्या जमाना रहा नजाकत ना, नृत्य लागे छे दाव कसरत ना। हाँ, अभी कसरत करते हुए लोग ऐसा लगते हैं कि जैसे कि कसरत कर रहे जी, हैं। बिल्कुल। डेलिकेसी है जो डांस की, वो रही नहीं। और आपका जो मैं सर कबीरदास जैसी जो बात लगी मुझे, वो बहुत बढ़िया ये था कि रोज आंसू वहे छता अकड़, श्राप मानस ने कोई पर्वत ना। ऐसा लगता है कि पहाड़ ने लोगों को श्राप दे दिया है कि आपको मतलब आंसू बहेंगे लेकिन अकड़ नहीं जाएगी। हाँ, बिल्कुल। अब तकलीफ में है लोग बाग, लेकिन अकड़ नहीं छोड़ेंगे, ईगो नहीं छोड़ेंगे। सही बात। ये जो बातें हैं इतना आसानी से कही गई। फिलॉसफी एक जगह और दिखती है, जीवता फावी गयूं आखिर मने। क्या बात है, इतनी बढ़िया थी, बहुत मजा आया इसको पढ़ के मुझे। हूँ सतत कर तो रहो सेंसर मने। हम अपने आप को ही सेंसर कर रहे थे, अभी मुझे जीना आ गया। बिल्कुल। और शहर के बारे में भी आपने जो सोसाइटी को देखा कि शहर के लोगों की दशा और दिशा कैसी है, उस पर भी आपने कमेंट किया। उसमें भी बहुत अच्छी जो लाइनें हैं वो ये, सीखवी गयु छे शहर ने आ कोण ए कहो के हाथ एटले फक्त खंजर अने छरा। ये कौन सिखा के गया? कौन सिखा के गया कि शहर में जितने लोग हैं सबके हाथों में खंजर और छुरा ही होना चाहिए। मतलब ये बातें आजकल की जो कविताएं हैं सर, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके जो गज़ल हैं इसमें हमें सब कुछ दिखता है कि कुछ लोग होते हैं जो पॉलिटिकल सटायर लिखते हैं, कई बार वो उस तरह की जाती है। आप का एजेंडा नहीं रहता है, मुझे ये रहता है लिखने में कोई एजेंडा नहीं है, किसी को नहीं बताना। एक जो भी दिख रहा है, जो दर्शन है, जो हम महसूस कर रहे हैं, जो हमारी एहसास में है, जो संवेदनशीलता में, एक कवि का यही सबसे बड़ा हम मानते हैं उस कवि को जिसके अंदर संवेदनशीलता है, कोई एजेंडा के तहत नहीं लिखता है। तो ये जो होता है, जैसा आपने अभी बताया कि आपके जो प्रशासन के दौरान जो आपके प्रशासन का जीवन था, उस टाइम पे भी आप इसीलिए सबको प्रिय रहे, सभी क्योंकि आप कोई एजेंडा नहीं चलाते, अपनी खुशी के लिए नहीं करते, आप एक संवेदनशील इंसान है, समझदार इंसान है, जो दिखता है खराब उसको बोलते हैं। तो ये जो है इसमें जो मूल सवाल है, इस तरह के लोग अभी बहुत कम मिलते हैं। ऐसा क्यों? ये क्या इनकी रख रखाव में बचपन से जो इनको बड़ा किया जाता है, या जो एजुकेशन है, कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे या लोग अपने आप, कई बार होता है ना कि हम आवड़नी बावड़नी जात हैं, जैसा वातावरण मिला और हम जग गए और हम वैसे हो गए। तो आपके केस में हम इसको क्या माने सर? नहीं, थोड़ा मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा इस बात को। देखो, कोई भी पोएट हो, वो अगर वो जो देख रहा है, उसको जो दिख रहा है समाज में, उसको पहले तो माइन्यूटली देखना सीखे जी। और दूसरी बात यह है कि उसके खुद के जो सेल्फ एक्सपीरियंसेस हैं
उसको भी वो कहीं ना कहीं पोएट्री में लाने का ट्राई करे, जी इनडायरेक्टली या जिस तरह से भी ला सकता है। अभी क्या हो गया है कि ज़्यादातर लोग जो हैं, खास करके गज़ल फॉर्म में जो लोग काम करते हैं, वो लोग हमेशा कौन से शेर पे लोगों की दाद मिलेगी, कौन से शेर पे लोग तालियां बजाएंगे, इस ग्राउंड पे काम करते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। एग्जैक्टली अब वो पोएट का ये काम ही नहीं है। देखो मैं आपको बताऊं, कई बार गज़ल इतनी सीरियस और इतनी सेंसिटिव होती है कि लोग जो है वो शेर आप पढ़ो ना तो चुप हो जाए, स्तब्ध हो जाए। वो सबसे बड़ी दाद है, चाहे एक भी ताली नहीं बजी, सोचने लगे और स्तब्ध हो जाएगा, स्टिमुलेशन हो गया, ऐसी बात है। हाँ। तो ऐसा होना चाहिए। अब ये तालियां बजाने के लिए अगर आप काम कर रहे हो तो वो सुपरफ्लुअस ही आएगा। तो ये जो तालियां वाले लोग हैं, ये जो उनको इंस्टेंट लाइक्स और कमेंट चाहिए, इनकी सेल्फ लाइफ कम होती होगी ना, बहुत कम नहीं होती है। फिर भी मैंने कहा ना कि वो लोग इस ट्रैप में आ जाते हैं कि तालियां कैसे मिले हमको। मैंने एक गज़ल में लिखा था, मैं आपको बताऊं कि जीवन आखू पड़े पड़ चूकवी ए यादनी कीमत, घणी मोघी पड़ी हमने प्रथम वरसादनी कीमत। और उसका एक शेर था कि बने तो तू सरकी जजे कशु बोल्या विना ત્યાંથી, બને તો તું સરકી જજે કશું બોલ્યા વિના ત્યાંથી, ગઝલ કરતા વધારે હોય જ્યારે દાદની કિંમત। गजल से भी ज्यादा अगर दाद की कीमत है तो निकल जाओ वहाँ से, कोई मतलब नहीं है, वहाँ जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो अभी जो हम बात कर रहे थे, ज़्यादातर लोग क्या ये दाद देने वाली बातें, दाद में क्या एक्चुअली हम इस बात को माने कि जब दाद दे रहे होते हैं तो सही में उसमें सब्सटेंस होता है, या कई बार जो बहुत ही शॉर्ट टाइम पे अट्रैक्ट करती है तो दाद मिल जाती है। अब जैसे पुरानी जो लॉन्ग शेल्फ लाइफ वाली गज़लें, लोग दोनों नहीं हो सकती क्या, जो लॉन्ग शेल्फ लाइफ हैं, बहुत लंबी चलने वाली हैं, जैसे दुष्यंत कुमार जी जैसा जो गज़ल हैं, जो कालजयी जिनको हम बोल सकते हैं कि हम किसी भी समय में वो कभी भी कोई भी उनको सुनेगा और पढ़ेगा और उनसे इंस्पायर होगा। तो उस तरह वालियों में भी हमें मिलती हैं। तो आजकल की क्या दोनों तरह की नहीं, वो लिखना बड़ा मुश्किल होगा? मुश्किल नहीं है, लिख भी सकते हैं लोग। पहले तो बात मैं आपको बताऊं कि गज़ल हो या कोई भी पोएट्री हो, गीत हो या अचानक ब्लैंक वर्सेस हो या कुछ भी हो, वो अंदर से आनी चाहिए। हाँ। वो आप पेन लेके बैठ गए, मैं लिख डालूं एक गज़ल, वो आप जब करोगे ना तो उसमें वो इफेक्ट नहीं जोड़ तोड़ लगेगा, जोड़ तोड़ लगेगा। और वो आप जो जिसमें जो एक सच्चाई होती है, एक स्ट्रेंथ होती है सच्चाई की, वो नहीं दिखेगी आपको कहीं भी। तो अभी तो ये एक तो लिखने का इतना वो हो गया है मर्ज सबको कि बस किसी तरह से गज़लें लिखते रहो, फेसबुक पे या सोशल मीडिया में डालते रहो, मुशायरों में पढ़ते रहो और तालियां बटोरते रहो। ये गलत है। मैंने इतने अच्छे अच्छे पोएट देखे हैं इन 30 ईयर्स में, दे वर पोएट्स इन देयर ओन राइट, और फिर भी उन्होंने 6-6 महीने तक, 8-8 महीने तक एक भी पोएम नहीं लिखी होगी, अगर नहीं आई है तो। नेचुरली जब आई है तभी उन्होंने लिखी है। करेक्ट। तो वो अभी नहीं रहा। हाँ। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस दौर का। तो मतलब आजकल क्या लोग बाग समाज को या जीवन को, जैसे मैंने जो भी आपके जो शेर हैं इनके उदाहरण दिए, इनमें हमें या तो जीवन दिखता है या कोई ना कोई मैसेज दिखता है, ये देना नहीं चाहते हैं या दे नहीं सकते हैं, उनके अंदर इतनी समझ नहीं है या संवेदना नहीं है, या ऐसा लगता है कि इन पे कम मिलेगा? क्योंकि लिखते तो हैं लोग बाग और हैं भी अच्छी, जिनमें दाद मिल रहे हैं वो भी अच्छी हैं, लेकिन जो एक दिखता है कि एक जो एक सब्सटेंस दिखना चाहिए वो कम रहता है। हाँ, उसमें ये है कि देखो उमा जी के हर एक को ऐसा लगता है कि मैं गज़ल लिख सकता हूँ। वो गज़ल इतना डिसेप्टिव फॉर्म है कि सबको लगता है गज़ल तो मैं लिख सकता हूँ, थोड़े मीटर सीख जाऊँ, थोड़ा उसका रदीफ काफिया वगैरह समझ लूँ, ये कर लूँ तो मैं लिख दूंगा। अब उसने गज़ल तो लिख दी, लेकिन उसमें गज़लियत कहीं आई कि नहीं, शेरियत शेरों में निकली कि नहीं, वो देखते ही नहीं है ना। दैट इज द प्रॉब्लम। वहाँ पे उसकी खुशबू नहीं आती है। तो इतने सारे लोग गज़ल लिख रहे हैं कि उसमें से 10% ही जेन्युइन गज़लकार होंगे। तो अगर उनको आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये अच्छी गज़ल लिख रहा है। करेक्ट। अब अगर हम वो 90% को सुनेंगे तो हमें ऐसा ही लगेगा कि ये क्या सब लिख रहे हैं लोग। तो एक दूसरी तरफ आते हैं, पुराने टाइम में जैसे आप जैसे लोगों से जब हम मिलते हैं तो हमें एक उनमें रोल मॉडल दिखता है, एक आइडियल इंसान दिखते हैं कि नहीं ये गज़ल भी हैं, इंसान भी हैं, दोनों एक ही हैं, दोनों को अलग अलग नहीं देख सकते हो। अगर आप स्क्रीन की बात करें तो वहाँ अलग होता है कि चलो आप स्क्रीन पे जो दिखाया आपने दिया और चलाए, लेकिन जब हम एक व्यक्तित्व समाज में रह रहे होते हैं तो ये समस्याएं रहती हैं कि लोग बाग जो लिख रहे होते हैं वो होते नहीं हैं और जो होते हैं वो लिखते नहीं हैं। तो ये जो डुअल रोल कर रहे हैं,
इससे क्या लग रहा है कि हमारी जो पढ़ने वाले लोग हैं, पर्टिकुलरली जो वाचक हैं, जो देखने वाले लोग हैं, उनको थोड़ा लोगों से निराशा होने लगी, क्योंकि लोग बाग वैसे हैं नहीं। बिल्कुल। तो हमने कई बार देखा कि अरे इस कवि के बारे में या इस लिरिसिस्ट के बारे में, इस व्यक्ति के बारे में मुझे इतने अच्छे आइडिया थे, लेकिन जब मैं मिला तो मुझे लगा अरे यार बहुत निराशा हुई। सही बात। तो ऐसा क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सभी लोग अपने आप को एक अच्छे आदमी के तौर पे प्रेजेंट करना चाहते हैं, जो पोएम के थ्रू कर रहे हैं उनकी अपनी, और बातचीतों में या मीटिंग्स में कर रहे हैं। लेकिन वो जो सही में जिस तरह के इंसान है वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट इंसान है। जैसे कि कोई आदमी है, ही इज़ नॉट ए टीटोटलर, लेकिन वो बातें ऐसी करेगा कि नहीं, शराब को तो छूना ही नहीं है, हर रोज शाम को शराब पीता होगा। तो वो जो जेन्युइननेस है पोएट्री की, वो कभी आएगी ही नहीं उसकी पोएट्री में, वो चाहे कितना भी कर ले। जो आप जी रहे हो वही आपको लिखना चाहिए, और जो आप लिख रहे हो वो आपने जो जिया है वही लिखना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत बार लोगों को सुना कि नहीं, इनको तो मैं अपना भगवान की तरह मानता था, ये कभी बड़े बड़े कवियों के नाम लेते हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जब कभी उनसे साक्षात मुलाकात हुई तो बड़ी निराशा हुई, क्योंकि उनका ये क्राफ्ट है, एक स्किल्स है कि जैसे वो कोई हाँ कोई घर बनाता है, कोई लकड़ी का काम करता है, वो क्राफ्ट्समैन है। यस, दे नो ग्रामर, दे नो हाउ टू पुट द वर्ड्स एंड दे विल मेक ए गजल। ये क्राफ्ट आपने जो यूज किया ना वर्ड, दैट इज द करेक्ट वर्ड फॉर दैट। और आप तो शायद कभी कभार इन लोगों को मिलते हैं, मैं तो 30 ईयर से इन लोगों के साथ ही रहा हूँ, कवि सम्मेलनों, मुशायरों में, यहाँ वहाँ आते जाते, जहाँ जाते हैं वहाँ भी उनके साथ कई बार गए होंगे। तो मैंने इन लोगों को इतने नज़दीक से देखा है कि ज़्यादातर किस्सों में तो निराशा ही हुई है कि भाई अब इनको तो हम कितना बड़ा है मान के चलते थे कि ये तो हमारे बिल्कुल आइडल हैं, लेकिन अब मिलते हैं, बात होती है, उनको देखते हैं तो पता चलता है कि नहीं, ये तो कोई ऐसी बात है नहीं। इसमें सर अगर एक फाइनेंशियल कंडीशन की बात होती है तो हम ये मानने के लिए तैयार हैं कि चलिए कहीं लोग किसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं फाइनेंशियल, तो थोड़ा बहुत हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चलिए ठीक है, वो थोड़ा बहुत अपना कुछ करेंगे इधर उधर, वो माना जा सकता। लेकिन अगर उसके बावजूद भी फाइनेंशियल एक बात ऐसी होती है जिसमें इसकी रोजी रोटी चलाना है, घर चलाना है, वहाँ कोई समस्या आती तो हम मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ये समस्याएं नहीं है, फिर भी वो अच्छे लोग नहीं है। वो एक चीज़ ऐसी है जो हमें, हमारे साहित्य को भी कई बार और हमारे साहित्यकारों को भी लोगों से दूर करता है। सही बात। मुझे कितने लोग कहते मिले कि यार ये कितना अहंकारी है, कितना इगोइस्ट है, बात ही नहीं सुनता है। कहीं बोलेगा मुझे, कुछ लोग बोलेंगे एयरपोर्ट से वापस चले जाएंगे। जैसे आपको देखिए, आप आगे हमें पता भी नहीं, हम तो आपको फ़ोन करने वाले सर बताना मुझे, और मैं नीचे आ जाऊँगा तो आपको ऊपर ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो अब बहुत सारे लोग एयरपोर्ट से चले जाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, बहुत सारे जो मासेज के साथ कनेक्ट है, जो साहित्य का एक रिश्ता जुड़ना चाहिए साहित्य और साहित्यकारों का, ये थोड़ी समस्याएं हैं जिन पे हमें, जो साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, उस पर थोड़ा हमें काम करने की ज़रूरत है, और उसको बहुत ही संवेदना के साथ समझने की ज़रूरत है। इससे साहित्य का भी भला होगा और समाज का भी भला होगा। तो ये, क्योंकि अभी आपने जो ये मुद्दे को जोड़ा ना आर्थिक स्थिति के साथ, ये मुद्दा तो होना भी नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि मैंने ऐसे पोएट्स देखे हैं 25, 30, 35 साल पहले जो हो गए, बड़े बड़े पोएट, श्याम साधु जैसे पोएट, जो एक खटिया में बैठे रहते थे, उनके पास कुछ था ही नहीं, सच ए पुअर पर्सन। और ऐसे कई लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं था, लेकिन इस तरह पे कभी नहीं आए, कभी नहीं। और उनकी आप पोएम्स देखिए, आपको लगेगा कि इससे अच्छा तो कोई लिख नहीं सकता, इतनी बढ़िया पोएम्स उन्होंने लिखी हुई है। यानी कितनी कवियों की कहानियां सुनी कि जब वो मुशायरे से आ रहे थे, उनको जो कंबल मिला, कोई गरीब स्टेशन पे पड़ा था तो उसको उड़ा दिया, वो बेचारे ऐसे ही चले गए ठंडक में। बिल्कुल। तो सही बात आपने बताया। अगर मैंने कहा ना कि सेंसिटिविटी नहीं है पोएट पर आज कई बार लोग बताने, कई बार मुझे से जब बातें करते हैं तो लोग बोलते हैं कि नहीं, ज़्यादातर कवि, पर्टिकुलरली ज़्यादातर जो कवि हैं वो गरीब परिवारों से आते हैं, और ये कविता भी गरीबी की ही उत्पत्ति बोलते हैं। जबकि आप जैसे लोगों ने, हम सब लोगों ने मिलकर ऐसा बोला कि भाई कविता केवल गरीबी की निशानी नहीं होनी चाहिए, कविता एक जीवन जीने का तरीका होना चाहिए, एक संवेदना का तरीका होना चाहिए। समाज के हर व्यक्ति को कविता से जुड़ना चाहिए, चाहे वो धनी है, चाहे जो गरीब है। लेकिन लोगों ने क्या किया कि उसको गरीबी से जोड़ के फिर गरीब कवियों के लिए वो एक ऐसा जोड़ देते हैं कि चलो नहीं, इनको एक एंटाइटलमेंट हो गया कि गरीब कवि हैं तो वो, अच्छा गरीब है, मान लिया एक मिनट के लिए कि वो गरीब हैं, फाइन, चलो उनके प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, फाइन। लेकिन ये लोग स्प्लिट पर्सनालिटी होते हैं, जो है वो सिर्फ, हाँ, वो आपके पास पैसे के लिए अगर आए हैं या कोई हेल्प के लिए आए हैं तो बहुत ही हम्बल होके आएंगे, अच्छी बातें करेंगे, ये वो, द मोमेंट द वर्क इज डन और वो बजाएंगे तब वो कोई और ही इंसान आपको दिखेंगे। बिल्कुल सही। तो ये जो डिफरेंस है वो तो नहीं आना चाहिए। आदमी गरीब है तो जो है वही दिखना चाहिए।
और ये सभी साहित्य में हो रहा है, सभी भाषाओं की साहित्य में हाँ, हो रहा है, सभी मुझे- हो रहा है। सभी जगह हो रहा है। तो इसमें हमारा इसी से जुड़ा हुआ जो सवाल है, डू वी सीरियसली नीड क्रेडिबल क्रिएटर्स टू कीप द सोसाइटी बैलेंस्ड इन सच ए वे दैट एथिक्स एंड वैल्यूज आर मेंटेन्ड? अगर हम इन चीज़ों को क्रेडिबल क्रिएटर्स हैं, वो लोग सोच रहे हैं, अब बहुत सारे जो साहित्य से जुड़े हुए केस आप सदा से सदा कविता ही चलाते हैं, लोग कोई भी पूछ सकते हैं कि इसमें इतना सारा खर्चा आता है, कोई भी प्रोग्राम करो तो खर्चा आता है, आखिर क्यों करेंगे? इससे क्या होता है, बहुत सारे लोगों को भला हो जाता है, बहुत सारे लोगों को सुनने से, बहुत सारे लोगों को सुनाने से। बिल्कुल। और बहुत सारी बातें ऐसी होती जो समाज में पहुंच जाती हैं थ्रू सोशल मीडिया या मीडिया, और पढ़ने वालों का भला हो जाता है। अब कोई बोलेगा आप ये ऐसा क्यों करते हो? ये समाज को सिविलाइज्ड रहने में, मॉडरेट रहने में मदद करता है। तो ऐसे क्रेडिबल सोच के लोगों के लिए हम लोगों को, पर्टिकुलरली आपने इतना सारा काम किया है इस साहित्य के मामले में, और कैसे मोटिवेट किया जाए कि, क्योंकि समाज, अगर ये साहित्य है ना, बैकड्रॉप है सोसाइटी की, सिविलाइज्ड सोसाइटी की, अगर ये नहीं रहा तो फिर और समस्याएं बढ़ती जाएंगी। तो आपको क्या लगता है सर, इसमें क्या करना और कुछ चाहिए? प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रोग्राम अरेंज करते हैं, जितने भी लोग, आप भी करते हैं, दूसरे भी लोग करते हैं, हम भी करते हैं, कई लोग करते होंगे, उसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि उनकी जो नज़र होती है वो एक चीज़ पर ही होती है कि किस तरह से ज़्यादा स्पेक्टेटर्स आए, ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आए। करेक्ट। उसके लिए देन दे विल कॉल सच पीपल who are popular among people, हाँ। although they don't deserve the stage. राइट। इससे भी तो थोड़ा इस सर्कल से बाहर आने की बात है, हाँ, ये इससे भी थोड़ा बचना पड़ेगा, बचना पड़ता है, क्योंकि हमें पॉपुलर डिमांड को एग्जैक्टली ध्यान रखना पड़ेगा। हम उसमें नहीं प्रोग्राम जाना करते हैं तो इसलिए नहीं करते हैं कि हम ऑडियंस इकट्ठा करें, हाँ। हम इसलिए करते हैं कि जिससे जेन्युइन जो पोएट्री लवर्स हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, उनको पोएट्री में लोगों सुनने में इंटरेस्ट है, उनके लिए कर रहे हैं, वो चाहे 5 हो, 50 हो या 2 हो। हाँ। तो मैं आपको नाम नहीं दूंगा, लेकिन ऐसे 3 या 4 पोएट्स को हमने टोटली डिस्कार्ड कर दिया है, हम उनको बुलाते ही नहीं है सदा सर्वदा कविता में, वो चाहे कितने भी इनडायरेक्टली कहलाते हों, हम बुलाते नहीं हैं उनको, बिकॉज वी नो व्हाट काइंड ऑफ पर्संस दे आर। राइट। तो ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करोगे तो ऐसे लोग थोड़े थोड़े विड आउट होके हाँ, अलग हो जाएंगे। क्योंकि ये साहित्य ऐसी चीज़ है, कविता ऐसी चीज़ है जिसमें दूसरे लोग जो समझते हैं, जैसे इस सोसाइटी के जो इस बिल्डिंग का जो बिल्डर है, वो एक दिन उनको ऐसे पता चलने लगा कि हम साहित्य का प्रोग्राम करते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप जब भी करना तो मुझे बुलाना, मैं आऊँगा, मैं ऑनलाइन भी जुड़ूंगा, मुझे बताना, मुझे बहुत इंटरेस्ट है इसमें। मैंने बोला ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट सही में हो तभी बात सही है। बिल्कुल। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंटरेस्ट ना हो और केवल ओब्लाइज करने के लिए करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब सर थोड़ा गुजराती जो अपना प्रोज है, प्रोज राइटिंग है, मैं जानता हूँ बहुत सारे यंग लोग हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। कविता में तो आपने जैसा बताया कि सब लोग आ जाते हैं, गज़ल लिखने लगते हैं, कविता लिखने लगते हैं, कोशिश करते हैं और लिख भी रहे हैं। तो प्रोज राइटिंग का क्या स्टेटस है अभी, कैसे, मतलब प्रोज में गुजराती में तो बहुत ही कम काम हो रहा है। जो आज से 20 साल पहले जितने लोग प्रोज में काम कर रहे थे, अच्छे अच्छे ऑथर्स, वो अभी उसके 50% या 30% भी लोग नहीं है। हाँ। आप नाम गिनने बैठो ना कि आज प्रोज में कौन अच्छा काम कर रहा है, तो वो आपको 5-7 ही लोग मिलेंगे। ऐसी पोजीशन हो गई है। क्योंकि हम ये चाह रहे थे, इतना साहित्य, इतना गहरा साहित्य है, रिच साहित्य है गुजराती साहित्य, तो इसमें जो प्रोज है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन होके बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हैं। इतने अच्छा लिखने वाले लोग हैं, लिख सकते हैं इतना बढ़िया। इसी वजह से हमने क्या किया था, ये सदा सर्वदा कविता प्रोग्राम है ना, उसमें ये जस्ट बिफोर कोरोना हमने 2-3 साल तक प्रोज और पोएट्री दोनों का कॉम्बिनेशन किया था। पहला जो एक 1 आवर था वो दैट वी हैड अलॉटेड टू प्रोज, राइट, और उसमें सबसे अच्छे लिखने वाले जो भी लोग हैं आज, उन सबको हमने एक 1 आवर वी वर अलॉटिंग टू देम, सो दैट दे कैन टॉक अबाउट देम। उनका जो क्रिएशन है उसके बारे में बात होगी, किस तरह से कहाँ किस संजोगों में उन्होंने लिखा ये सब। विनय शंताणी हो या वर्षाबेन अडालजा हो, इला अरब मेहता हो, या ये हमारे वो कितने ही लोग हैं, जो भी टॉप मोस्ट पोएट राइटर्स हैं, वो सब आके गए उसमें। प्रवीण सिंह चावड़ा थे, एनी नंबर ऑफ पर्सन्स। अब हम फिर से वो शुरू करने वाले हैं, लेकिन वो संख्या मैंने आपसे कहा ना कि बहुत लिमिटेड हो गई है। 10, 15, 20 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको। तो इसमें क्या कुछ टाइम ज़्यादा लगता है और इसका स्कोप कम दिखता है, ऐसा हो? नहीं, 2 चीज़ें। एक तो बिकॉज ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, गुजराती के प्रति जो एक आपका अप्रोच या आपका एटीट्यूड, लैंग्वेज के प्रति आपका लव, वो सब धीरे धीरे कम होता जाता है। गुजराती मीडियम की स्कूलें बंद होती जा रही हैं, और इंग्लिश मीडियम में पढ़ने की वजह से बहुत ही लिमिटेड एक्सपोजर है उनका लैंग्वेज के लिए।
एक्सपोजर भी कम है, और दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार कम होता जा रहा है। जो प्यार कम होगा, क्योंकि आपने भी इंग्लिश मीडियम जैसा ही है, आप बीएससी के बाद सब इंग्लिश मीडियम ही हो जाते हैं ग्रेजुएशन के बाद। साइंस इज ऑल, बट आपका जो इंग्लिश पे कमांड है, साइंस पे कमांड है, जो गुजराती पे कमांड है, अगर प्यार है अंदर से और उस पर गर्व फील करें। एक होती कहने की बात, मैंने बहुत बार लोगों को सुना कि हमें गुजराती भाषा को प्रमोट करने के लिए क्या करना चाहिए, लैंग्वेज को प्रमोट करने। मैंने बोला देखिए ये बातें करने से नहीं, हमें जो प्यार होता है ना वो दिखता है, वो दिखेगा, आपके अंदर से निकलेगा, वो आप केवल नहीं है, वो प्यार अंदर से निकलता है, वो दिखना चाहिए बिल्कुल। और उसमें ऐसा नहीं कि आप किसी भी भाषा को कम करके अंग्रेजी को कम करो या हिंदी को कम करो या तमिल को कम करो, बंगाली को, उसमें कुछ नहीं आता है। सही बात है। तो यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा हमें लगता है कि नहीं, बहुत ज़रूरत है। और इसमें हम लोगों ने भी उस वक्त नरेंद्र भाई थे तब से ये शुरू किया था हमने, तो अभी जाके वो थोड़ा मटेरियलाइज हुआ। हमने ये कहा था कि आप गुजराती को मैंडेटरी बनाइए। हाँ, अभी हुआ इस साल, अभी हुआ, इस साल से हुआ। हाँ, हमने कहा कि आप मैथ्स और साइंस इंग्लिश में पढ़ाएं, कोई इशू नहीं है, फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड आप पढ़ाइए इंग्लिश में, गुजराती मीडियम वालों को भी इंग्लिश में पढ़ाइए बिल्कुल। लेकिन ये जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, सिविक है, हिस्ट्री है, या आपका गुजराती का तो ऑफकोर्स गुजराती, तो ये बाकी के जो सब्जेक्ट्स है गुजराती में पढ़ाए जाए ताकि वो कनेक्ट हो सके लैंग्वेज के साथ। और दूसरा जो पढ़ाने वाले लोग हैं, जो समाज के लोग, जो हम सब लोग हैं, हम सबको भी थोड़ा सा एक सम्मान और प्यार दिखाना पड़ेगा बिल्कुल। अगर वो कोई मैं तो कितने बार देखा हूँ कि बच्चे को गुजराती में बोलने नहीं देते हैं लोग बाग, या सोचते हैं नहीं कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा भविष्य में, जबकि बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। मीडियम डजंट मैटर एट ऑल, मीडियम डजंट मैटर एट ऑल। और मैं आपको बताऊं, मेरा लड़का है, ओनली वन सन। मेरे पिताजी के साथ मेरा इतना झगड़ा हुआ उस मुद्दे ऊपर, उसको स्कूल में रखना था, तब मैंने कहा इसको गुजराती मीडियम में ही रखूंगा मैं, ही हैज़ टू स्टडी इन गुजराती मीडियम ओनली। तो बोले नहीं, इसको तो इंग्लिश में, कार्डियोलॉजिस्ट। हाँ, तो उसको मैंने दीवान गोलूबी में रखा। वहाँ से लेकर आज उसने MBBS किया, MD किया, DM किया कार्डियोलॉजी में, कहीं पर भी उसको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह का। हम लोगों कहाँ हम भी हिंदी वाले, आप आज उसकी इंग्लिश आप देखें तो मैं मानता हूँ कि कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ा होगा लड़का, उससे भी 10 टाइम्स फ्लुएंट इंग्लिश वो बोलता है। बस ये जो प्यार है, ये होना चाहिए, ये एग्जैक्टली ये होना चाहिए कि आप कहोगे कुछ और, सेट एन एग्जांपल योरसेल्फ। एग्जैक्टली ये जो आप कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो, वहाँ समस्या आ जाती है। exactly. उसकी वजह से हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं इस मामले में। सर क्योंकि अब हमारा पहला सेगमेंट खत्म होने वाला है, दूसरा सेगमेंट शुरू करेंगे। हम ये चाहते हैं कि आपकी जो कुछ गज़ल्स हैं, जिनके शेर आपको लग रहा है कि सुनाना चाहिए और लोगों को पसंद आनी चाहिए, कुछ अगर हमारे लोगों के लिए सुना दें तो। ओके, चलिए मैं सुना ही देता हूँ एक दो शेर। हाँ, और नहीं ठीक है। जैसे कि इसमें लैंग्वेज की भी बात आती है, तो इसको ऐसे ही निकला है ये जी बिल्कुल, कि इसके 2 शेर में पढ़ूंगा कि आ बधा औकात वाला अन्यनी औकात पूछे, आ बधा औकात वाला अन्यनी औकात पूछे, क्या गजू છે એમનું કે કોઈનો આઘાત પૂછે, क्या ગજુ છે એમનું કે કોઈનો આઘાત પૂછે, તમને જે સોંપી હતી મેં એ જણસ ગુજરાતી ક્યાં ગઈ, જણસ મીન્સ ઓર્નામેન્ટ, તમને જે મેં સોંપી હતી એ જણસ ગુજરાતી ક્યાં ગઈ, એનો उत्तर આપશો શું જો કદી ગુજરાત પૂછે। एग्जैक्टली, इसका क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे अपनी जनरेशंस को? एग्जैक्टली, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नेक्स्ट जनरेशंस के रेफरेंस में भी है। बिल्कुल, दैट इज द इशू। आप आने वाले लोगों को हम क्या लेगेसी दे के जाएंगे, क्या हम जवाब देंगे, खुद को क्या जवाब देंगे जब हम कुछ करने की स्थिति में नहीं रहेंगे तब। और अभी आपने जो कहा ना कि जो फील होता है वही पोएट्री में आना चाहिए, ये इसका एक एग्जांपल है। आई विल टेक ओनली 1 मिनट कि सुख विषे ज्યાં हैसियतनी બહાર બોલ્યો, સુખ વિશે જ્યાં हैसियतनी બહાર બોલ્યો, स्वप्न जुए છે तरत अंधार बोल्यो। और उसमें 2 शेर हैं कि કેટલા વર્ષો ગયા એ ભૂસવામાં, કેટલા વર્ષો ગયા એ ભૂસવામાં, ક્રોધમાં જે શબ્દ હું બેચાર બોલ્યો, ક્રોધમાં જે શબ્દ હું બેચાર બોલ્યો, અને એક વેળા સાંભળ્યું મેં આત્માનું, એક વેળા સાંભળ્યું મેં આત્માનું, ત્યારથી વચ્ચે એ વારંવાર બોલ્યો। क्या बात, बहुत बढ़िया। सो थैंक यू सो मच सर, एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द फर्स्ट सेगमेंट। अभी हम दूसरा सेगमेंट शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा पर्सनल होता है और इसमें आप एक शब्द में या एक सेंटेंस में जवाब दे सकते हैं। ठीक है।
आप अपनी लाइफ को अगर एक शब्द में या एक सेंटेंस में डिफाइन करना चाहें, योर लाइफ हैज़ बीन व्हाट? मोस्ट सेटिस्फाइड। मोस्ट सेटिस्फाइंग, क्या बात है, मोस्ट सेटिस्फाइड पर्सन यू आर, दैट्स अ वंडरफुल थिंग। हमारे सबके लिए यही सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होते किसी चीज़ से। ये मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं ना ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बट आई विल मॉडिफाई इट, नॉट ऑनेस्टी, कंटेंटमेंट इज द बेस्ट पॉलिसी। कंटेंटमेंट इज द बेस्ट पॉलिसी, यस। इफ यू आर कंटेंटेड यू विल नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग, यू विल नॉट डू एनी डिसऑनेस्टी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। अब क्योंकि आपने कंटेनमेंट की बात किया, तो आपके जीवन में, क्योंकि सब कंटेनमेंट तो है, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो मोस्ट फुलफिलिंग होती है, मोस्ट कंटेंटिंग होती है, तो सबसे फुलफिलिंग इवेंट कौन सी है या मोमेंट कौन सा था अभी तक का? सबसे फुलफिलिंग इवेंट अगर मैं कहूँ तो वो है कि मेरे पिताजी की एडवाइस पर मैं पीआरएल छोड़ के गवर्नमेंट में गया। ओके, दैट मेड ऑल द दैट चेंज द होल कॉम्प्लेक्शन ऑफ माय लाइफ। पीआरएल में शायद मैं अच्छा काम कर सकता, लेकिन यू वुड हैव बीन कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर स्फीयर। एक कॉम्प्लेक्स में रह यहाँ मैं पूरी सोसाइटी के साथ कनेक्ट हो पाया और जो कितने लोगों का भला कितने किया। लोगों का कर पाया जी। अगर मैं अगला सवाल पूछूं, आपके अलावा आपका कंटेम्प्रेरी जो गुजराती पोइट्स उनमें कौन फेवरेट है? फेवरेट में मैं कहूँ, वैसे तो अगली में भी अनफेयर लिटिल नहीं नहीं, फिर भी वो अगली पीढ़ी के हैं वैसे, लेकिन राजेंद्र शुक्ल इज माय फेवरेट पोएट। जितने अभी जो है कंटेम्प्रेरी उसमें, पोइट्स, यस। अगर पीछे की बात करते हैं आप, जो हु आर नो मोर, तो उसमें रमेश पारेख वाज माय फेवरेट पोएट। राजेंद्र शुक्ला साहब को हमें सुनने का मौका मिला था प्रोग्राम में। सॉरी। अब हम थोड़ी अलग बात करें कि वन थिंग यू आर मोस्ट अनहैप्पी अबाउट द मॉडर्न डे लाइफ, जो आज का जीवन है उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो जिससे आप बहुत नाखुश हैं? हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी, उसके हमने बात भी किया, बिल्कुल, कि लोग कहते कुछ और हैं। आई लाइक द पीपल हु डोंट क्लेम दैट दे आर ऑनेस्ट, बट दे डू अपीयर एज दे आर। लेकिन जो हिपोक्रिट्स लोग हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपकी कोई अभी एनी अनफुलफिल्ड डिजायर सो फार? एक है कि मुझे एक इंग्लिश ग्रामर पे बहुत बढ़िया बुक करना है, सेल्फ लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। वो मैं कर रहा था कभी बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में। नहीं, मैं किसी टीचर की जरूरत ही उसमें नहीं पड़े, एकदम इतनी बढ़िया रहेगी कि कोई भी जो बोर्ड वर्क टीचर करता है ना, उसी तरह के पेजेस उसमें आए एक्सप्लेन करते हुए। मुझे ऐसा लगता है कि आप बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि आप परफेक्शनिस्ट हैं। मैंने आपको हर काम में देखा। तो मेरा, और इंग्लिश ग्रामर इज माय चॉइसेस सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम फिजिक्स, तो मैं उस पर तो काम बिल्कुल अभी चल ही रहा है मेरा। कभी ना कभी तो हो ही जाएगा, फिर एक आध साल में हो जाएगा। तो स्कूल्स को बड़ा बेनिफिट होगा उसका। आपके सपनों का भारत कैसा होगा? इंडिया ऑफ योर ड्रीम्स कैसा? मेरे ड्रीम्स का जो भारत होना चाहिए उसमें से अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा, बट आई डोंट वांट टू बी पेसिमिस्ट। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि इन डेमोक्रेसी पीपल गेट द गवर्नमेंट दे डिजर्व। राइट। अगर हम ठीक नहीं है तो हम गवर्नमेंट के कसूर निकाल के क्या करेंगे? वो हमारे ही हम में से ही आते हैं, वो बाहर से कहीं नहीं आते हैं। आज ब्यूरोक्रेट्स को कोई गालियां देगा या नेताओं को गालियां देगा तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? वो तो हमारे बीच में से ही आए हुए हैं। बिल्कुल। तो जो इंडिविजुअल्स को सुधरने की जरूरत है, इंडिविजुअल्स को अपने आप को ठीक करने की जरूरत है, वो जब प्रोसेस होगी, इस तरह से लोग जो शायर कहते हैं ना, वो सुबह कभी तो आएगी, इस तरह की बात है ये। तो अगर होता है और इस तरह का इंडिया बनता है तो वो हमारे सपनों का होगा भारत, जिसमें सब लोग सोचने समझने की शक्ति आ जाए उनके अंदर। एग्जैक्टली। सही डिसीजन और गलत काम करने से डरे लोग। गलत काम करने से डरे लोग। इसी से संबंधित एक सवाल दूसरा है कि व्हाट इज एलिंग इन टुडेज सोसाइटी? सबसे इस समाज का, आज के समाज का सबसे बड़ा परेशानी का क्या है? ग्रीड। आई थिंक ग्रीड इज द थिंग। जिसके पास ही इज अ मिलियनर, ही वांट्स टू बी बिलियनर, ट्रिलियनर। ही नेवर थिंक्स कि भाई मेरी जरूरत तो मिलियनर की भी नहीं है। वो तो मैं तो इतने ही मुझे मिल जाए तो मुझे वो करना ही नहीं है, मैं करूंगा क्या ऐसे पैसे इकट्ठे करके? तो ग्रीड ये हर लेवल पे है, चाहे बेसिक लेवल पे वो पॉलिटिकल ग्रीड हो, फाइनेंशियल ग्रीड हो, या नाम कमाने की ग्रीड हो, या जो भी हो। मुझे लगता है ये ग्रीड ही, आपने बहुत बढ़िया सवाल, मैं कुछ शायद अलग सोच रहा, लेकिन ग्रीड का एक जो है, ये सबसे बड़ी आप देखें ना, तो these all things are interconnected. Contentment, greed, hypocrisy, in a way they all are interconnected. करेक्ट, परफेक्ट। तो हम सब लोगों को ग्रीड से बचना है। जो भी है, मेहनत तो करना ही है, और ज़्यादा कमाना है, लेकिन लालच नहीं करना है ग्रीड करके कि नहीं इतने में हम नहीं है, हमें और ज़्यादा कमाना है। मेहनत तो करते ही रहना है, ऑर्गेनिक ग्रोथ तो होगी जो होना है, बट उसके लिए गलत काम नहीं करने। सोशल मीडिया का क्रिएटर्स के लिए आपकी क्या सलाह है कि क्रिएटर्स को सोशल मीडिया कितना हेल्प करता है?
नहीं, हेल्प जरूर करता है, लेकिन उसका जो ओवर यूज़ है और उसका मिस यूज़ है, दिस इज़ द प्रॉब्लम। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कोई भी अच्छी चीज़ को हम इतना डिस्टॉर्ट कर देते हैं कि वो उसका ओरिजिनल फॉर्म ही गंवा देता है। हाँ। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, और हम उसके ट्रैप में आ जाते हैं। ट्रैप में आ जाते हैं। देखिए, वो टीवी हो या सिनेमा हो या थिएटर हो या कुछ भी हो, अब देखिए हर एक चीज़ में हमने ये किया है। एंड नाउ वी आर डूइंग इट विद सोशल मीडिया ऑल्सो। अदरवाइज सोशल मीडिया से आपको इतना एनलाइटनमेंट होता है चीज़ों का, आप जो जानते नहीं वो चीज़ें जानने मिलती है, आप नई नई चीज़ें। इतने कई पोएट तो ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू ही पोएट बने हैं। हाँ, हमारे एक स्पीकर थे, वो बोल रहे थे कि हमें तो लोगों ने इतना एनकरेज किया कि हम राइटर बन गए, हमने किताब लिख दी। हाँ, तो सोशल मीडिया के फायदे भी हैं, लेकिन हमें अपनी लिमिट सेट करनी पड़ेगी। हम पहले भी आपसे बात कर रहे थे कि जो अपनी लिटरेरी सोसाइटीज़ हैं, ग्रुप्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, ये मैसेज को कनेक्ट करने में किस तरह से और ज़्यादा काम करना चाहिए कि मदद करें। जैसा हम बात कर रहे थे कि जो सोसाइटी है, जो लिटरेचर है, उसका एक बहुत बड़ा अहम योगदान होता है और उसको बताना पड़ेगा आगे चल के कि हमने ये किया सोसाइटी के लिए, अपने आप को भी, समाज को भी। तो और क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? हम भी करते हैं, आप भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। मोर कनेक्ट, और ज़्यादा कनेक्ट करें और ज़्यादा ज्वाइन करें लोग। बस उसमें दो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। एक तो ये है कि हम जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं ना, आप भी करते हो, हम भी करते हैं, तो आपको वही ऑडियंस का एक ग्रुप दिखाई देगा हर बार। बिल्कुल। 200, 500, 400 लोग। इसी बैरियर को तोड़ने के लिए बात कर रही है। अब वो तब टूटेगा जब आप यंग जनरेशन को अपने साथ कनेक्ट करोगे। ओके। अब हमने अभी सदा सर्वदा कविता के लिए इस बारे में सोचा है, हम कुछ करने वाले हैं। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि जो आप एक प्रोग्राम्स कर रहे हो हॉल के अंदर या कहीं पर, उससे अच्छा है कि आप महीने में कॉलेज की परमिशन लेके, यूनिवर्सिटी की परमिशन लेके वहाँ जाके करो, ओपन ग्राउंड। जैसे कि एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज ने साहित्य सरिता कार्यक्रम करना शुरू किया, तो इतना सक्सेसफुल हो रहा है वो। हाँ, बहुत इंजीनियरिंग वाले बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो इसी तरह से आप मेडिकल कॉलेजेस हैं, साइंस कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वहाँ जाके वो प्रोग्राम करिए। फॉरगेट अबाउट ऑडियंस, दैट दो स्टूडेंट्स आर ऑडियंस। आई थिंक दिस इज गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। अब एक और फाइनल सवाल है हमारा आपसे कि नेक्स्ट 5 इयर्स में हम आपको क्या देखें सर? आप मतलब साहित्य में, पर्सनल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, या किसी भी तरह से कहाँ देखते हैं अपने आप को नेक्स्ट 5 इयर्स? देखो, एज फार एज जॉब इज़ कंसर्न, वो तो एक पर्टिकुलर एज तक आप कर सकते हो, फिर तो उसको छोड़ना ही पड़ता है। तो वो तो मेरा प्लान इस तरह का है कि ग्रेजुअली आई विल मूव अवे फ्रॉम दैट। और कुछ अपने लिए जो करना होता है, जैसे कि घूमना है, फिरना है, जाना है, चीज़ें देखनी है, वो रह गई हैं जो, वो करना है, पढ़ना है। आज मैं लास्ट 2 साल से कोई किताब नहीं पढ़वाया हूँ, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि ये सब बाजू पे हो जाए ना, तो आई कैन रीड दोज थिंग्स। फैमिली का सवाल है, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड पर्सन, क्योंकि मेरा एक ही बेटा है एंड ही इज़ अ डॉक्टर, इज डूइंग वेल, इज डूइंग हिज वर्क। वाइफ इज़ अ रिटायर्ड पर्सन, शी इज़ ऑल्सो हैप्पी, तो वो सवाल नहीं है। और जहाँ तक लिटरेरी उसका सवाल है, तो उसमें मैं कुछ ऐसा करना चाहूँगा, ऑलवेज आई ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन माई प्रीवियस वर्क, तो वो मैं आगे करता रहूँ अच्छा काम। और जितने भी पोएट्री लवर्स हैं या लिटरेचर के लवर्स हैं, उनको सबको कनेक्ट कर पाऊँ। और मैंने कहा ना कि यंग जनरेशन को इसमें कनेक्ट कर पाऊँ, वो मेरा एक। कोई मेमोयर लिखने का प्लान नहीं है? मेमो लिख सकते हैं, लेकिन देखो मैंने आपको बताया ना कि मेमोइज में प्रॉब्लम ये होता है कि आप सही बात है, सब नहीं लिख सकते। हाँ, और बस सभी लोग नाराज हो जाएंगे। सुपरफ्लुअस करने से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सही बात है। एक दो और ऐसे जो ऑटोबायोग्राफी लिखने वाले लोग थे, उनसे मैंने बात किया, तो उन्होंने बोला कि आप 30 से 40% से ज़्यादा नहीं लिख सकते हो। इवन 30-40 बहुत है। बिल्कुल। और अगर आप वो सारी बातें लिखने लगो तो नाराज भी हो जाएंगे, और उसके रिपरकशंस होते हैं, रिपरकशंस अलग होगा। और अगर ट्रूथफुलनेस नहीं है आपके राइटिंग में, तो भी मतलब भी नहीं है कोई, वो डिप्लोमेसी से लिखने का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच सर, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। ये प्रोग्राम हमारा आप अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल के यूट्यूब चैनल, दैट इज़ www.youtube.com/c/Ahmedabad इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल, HM लिटफेस्ट ट्विटर हैंडल, एज वेल एज अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल के फेसबुक पेज पे देख सकते हैं। ये हमेशा अवेलेबल रहेगा। अगले हफ्ते हम फिर किसी न किसी ऐसे व्यक्तित्व को लेके आएंगे जिनके बारे में आपको पता तो होगा, हो सकता है, लेकिन उनके काम के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके भविष्य के बारे में, उनके विजन के बारे में शायद नहीं जानकारी होगी। इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम कुछ ऐसी बातें लेके आएँ जो शायद आपको इंस्पायर करें, आपके जीवन में फ़ायदा हो, समाज को फ़ायदा हो।
आज के प्रोग्राम से भी हम यही उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को हर्ष भाई के विजन से, इनकी बातों से, इनके लेखन से ज़रूर फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। टिल द टाइम, कीप वॉचिंग एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड। Thank you. Thank you.